Good morning, everyone, and welcome back to the class. We have completed our revision up to executive. Before your examination, half-yearly examination, we have completed up to executive, and now we will start the revision of the new chapter, that is legislature. Okay, in book 1, Constitution at Work. This is your book, and the chapter is legislature. So, first of all, under this chapter, we are going to know everything about legislature in general, and in particular, we will discuss about the legislature in our country. So, first of all, we must understand the importance of legislature. As we all know, the organs of the government are divided into three parts: the executive, the legislature, and the judiciary. And the functions of all these three organs are also specified, like the function of the legislature is to make laws. Then the executive is there, which is to implement or execute or enforce the laws. And then the judiciary is there, which is there to settle the disputes, whatever disputes are coming, whatever if someone is not following the law, then the punishment is given by the judiciary. So this is the division of power among different organs of the government. But here you must understand the importance of legislature. Legislature is not simply a law making body, and it is not simply ki this is the importance of legislature, that it's a law making body. Actually what we find that जिसको हम democracy कहते हैं, that democracy is materialized through legislature only. ये पूरे की पूरी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है उसका ये सेंटर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी is about the rule of the people, and we rule through our representatives, and these representatives are elected through elections. अब ये जो representatives हम elect करते हैं, they form the legislature. The legislature is the representative body of the people, and that is why we can say it is the center of democratic process. पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है, जिसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो पूरी की पूरी इसी लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वही लेजिस्लेचर में ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, एंड दे जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको वो सामने रखते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है. Not only this, the most important aspect of this legislature is that it controls the executive, because executive is the real powerful. The implementation is done by the executive. In any country, executive is the एक्चुअल गवर्नमेंट, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ही इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. बट in a country like India, which have adopted this parliamentary form of government, under that government what we find that the legislature is there to control the executive. So this is the importance of legislature, कि it is a representative body of the people. It is there to represent the common people. It is there to have control over the over the executive, and this control is causing the executive to become accountable, है ना. if control was not there, अगर ये legislature का control नहीं होता तो क्या होता, executive जो है वो accountable नहीं बनते, है ना. So we see कि executive जो legislature का importance है वो यही है कि ये democracy को सही में implement करती है.
एंड व्हाट वी फाइंड कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इसका इम्पोर्टेंस है वो बहुत सेंटर प्लेस है ये डेमोक्रेसी में। स्टिल जो लेटेस्ट ट्रेंड हम देख रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट डेमोक्रेसीज, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग that the legislatures are losing this central place, and instead of legislature the executive is taking the central place. ये हो रहा है in our country also, we are observing this is happening. ये जो cabinet है हमारी, that is becoming more and more powerful, that is becoming more and more important. And that is the reason there are some critics who are of the opinion that the parliament has declined. But here we must remember that any cabinet, there may be very strong executive, very strong prime minister, strong cabinet, but that strong cabinet can be in power only when it has the support of the majority in the legislature. If it is not having the support, or the moment it loses the support of the majority in the legislature, it will lose its post and position, है ना। तो दो हम कह सकते हैं yes it is happening कि एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेजिस्लेचर इज डिक्लाइनिंग, स्टिल लेजिस्लेचर का जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह हमेशा बना रहेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर की सपोर्ट पे ही जो हमारा कैबिनेट होता है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उस पे टिके होते हैं। कितना भी स्ट्रांग लीडर हो, कितने भी स्ट्रांग मिनिस्टर्स हो, they have to face the parliament, they have to face the questions of the opposition parties, and not only face the question, they have to give satisfactory answer. Mind it, satisfactory answer. They can't just answer the question, they have to give satisfactory answer, and if the answer is not satisfactory, then the members can again put pressure on the minister or the prime minister. They can walk out from the house, they can start putting pressure on the government. तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंस को हम कभी भी कम नहीं कह सकते, इट कैन नेवर डिक्लाइन। ये एक ऐसा फोरम देता है जो कैबिनेट, जो पार्लियामेंट है, इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर डिबेट वॉट एवर नेशनल इश्यूज आर देयर, दैट इज डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। और वो जो कुछ भी वॉट एवर इज डिबेटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, that is that the live telecast of all these discussions and debates are available for the people. तो ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, बिकॉज पीपल आर अवेयर कि कौन किसने क्या कहा हाउस के अंदर, किसके क्या व्यूज हैं, पीपल आर बिकमिंग अवेयर, और इससे पब्लिक ओपिनियन जो है वो शेप होता है। एंड अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इन तीनों ऑर्गन्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है वो यही ऑर्गन है, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, दो द मेंबर्स आर, जो भी एग्जीक्यूटिव में मेंबर होते हैं, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। बट लेजिस्लेचर जितना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उस तरह का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। तो लेजिस्लेचर के इम्पोर्टेंस को हम डिक्लाइनिंग नहीं कह सकते हैं। ये ट्रेंड आ रहा है, कैबिनेट की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, लेकिन वहीं पर आकर हम फिर रुक जाते हैं कि कैबिनेट तभी तक पावरफुल रहता है, तभी तक वो पावर में रहता है जब तक कि उसको लेजिस्लेचर से सपोर्ट मिल रहा होता है, लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी जब तक उसके साथ है। तो इसलिए अल्टीमेटली हु इज पावरफुल, द लेजिस्लेचर इज पावरफुल। सो इट इज़ नॉट करेक्ट टू से कि आज के समय में लेजिस्लेचर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है। लेजिस्लेचर इज स्टिल पावरफुल। और इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें
तो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर. लाइक व्हाट हैपेंड इन February 2002. In February 2002, the Union Finance Minister Jaswant Singh, he announced in the Union budget proposal for an increase of rupees 12 in the price of a 50 kg bag of urea. ठीक है, यूरिया के प्राइस को में इंक्रीज लाया गया बजट में. और ये कितना का इंक्रीज था? 12 रुपीज़ का इंक्रीज था 50 kg बैग के लिए. इसी तरह से जो कुछ और भी फर्टिलाइजर्स थे उनमें भी कुछ इंक्रीज किया गया, फर्टिलाइजर्स के प्राइस को इंक्रीज किया गया. ठीक है, और ये क्या हुआ कि इस प्राइस राइज का जो प्रोटेस्ट हम देखते हैं कि जो रिएक्शन आया पार्लियामेंट में, दैट इज वेरी important to understand. So when this price rise was done, we see that fertilizers are directly related to the farmers. And अगर fertilizer के price को increase किया जाएगा तो it will impact the life of farmers who constitute the major portion of our population. Not only this, they face so much problems in their life. तो जो हमारे different political parties के जो representatives वहाँ पर थे पार्लियामेंट में, they started putting pressure on the government कि ये जो प्राइस राइज किया गया है बजट के अंदर यूरिया पर, जिसका जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो फार्मर्स पर पड़ेगा, तो उस प्राइस राइज को वापस लिया जाए. और ये जो प्रेशर था वो गवर्नमेंट पे इतना इंटेंस प्रेशर हुआ कि अल्टीमेटली 11 मार्च 2002 को फाइनेंस मिनिस्टर को रोल बैक करना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपने डिसीजन को. तो दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज द पावर ऑफ पीपल. एक्चुअली पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री ना. तो अगर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट पावरफुल है तो दैट इज द पावर ऑफ द पीपल. दिस इज एक्चुअल डेमोक्रेसी. इसको हम कहेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी सही में काम कर रही है. अगर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, जो कि गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, एग्जीक्यूटिव, द मिनिस्टर इज टेकिंग डिसीजन कि हमने यूरिया की प्राइस बढ़ा दी, फाइनेंस मिनिस्टर, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज द गवर्नमेंट हैज टू रोल बैक द डिसीजन. ये है हमारे पार्लियामेंट की पावर, ये है हमारी डेमोक्रेसी की पावर. दिस इज द रियल डेमोक्रेसी. एंड इसी तरह के कुछ और भी सीन्स जो थे वो क्रिएट हुए थे 1998 में, जबकि हम देखते हैं कि लोकसभा में इसी तरह से जो पेट्रोलियम के यूरिया और पेट्रोलियम दोनों के ही प्राइस को इंक्रीज किया गया था. और इसमें क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो हमारी अपोजिशन थी पार्लियामेंट में, उसने वॉकआउट कर दिया कि वो हाउस की प्रोसीडिंग में दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसीडिंग. उन्होंने वॉकआउट कर दिया. और इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रुकी रही 2 दिनों तक. इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन पे वही प्रेशर फील करते हैं जो कि अभी हम लोगों ने 2002 वाला डिस्कस किया. और फाइनेंस मिनिस्टर को यूरिया की प्राइस में जो राइज किया गया था उसको फिर से वापस लेना पड़ा. तो ये जो चीज़ें होती हैं वो बताती हैं कि पार्लियामेंट इज स्टिल पावरफुल. अभी हमने कहा कि ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि जो कैबिनेट है, जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज़ बिकमिंग मोर पावरफुल, बट अल्टीमेटली पार्लियामेंट जो है वो हमेशा ही पावरफुल रहेगी, क्योंकि ये कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एंड दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. Likewise, many times it also happens कि जो ऑफिशियल बिजनेस होता है हाउस का, उसको रोक करके किसी ऐसे इशू पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है जो कि अपोजिशन चाहती है. ऑफिशियली कुछ और करना था हाउस को, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सेप्ट देयर डिमांड और वो उस पर डिस्कशन करती है. लाइक ऐसा हुआ 1983 में, जबकि हाउस की ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स को कैंसिल करके क्या सस्पेंड करके क्या किया गया कि जो असम का इशू था
वहाँ पे कम्युनल हार्मनी को कैसे प्रमोट किया जाए उस पर डिस्कशन हुआ। इसी तरह कई बार जैसे कोई हमारी कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट अगर किसी तरह की एट्रोसिटीज़ होती हैं तो उन जो वो इश्यूज़ हैं उसको उस पर डिस्कशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज जब उस पर डिस्कशन होगा तभी जो हमारी पूरी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ जाएगा एंड देन इट विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट के पावर को दिखा रही है कि हाउ पावरफुल इज पार्लियामेंट, एंड वेन एवर वी आर सेइंग दैट पार्लियामेंट इज पावरफुल, इट इज़ द पावर ऑफ द कॉमन पीपल. So parliament is, it has its importance, it is never going to lose its importance. Though there are many factors, we will discuss all those factors in the later part of the chapter कि कौन सा वो factor है जो parliament को powerful बनाता है. Okay. Now we are coming to the composition of the legislature, and we find that in most of the countries there are two houses of parliament. There are two houses of legislature. In our country, this national legislature is known as parliament. The legislature which is at the national level. जो national level पे legislature उसको हम parliament कहते हैं, और जो state level पे legislature है उसको हम state legislature ही कहते हैं. ठीक है. अब हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट जो इंडिया में है हमारी, उसके दो हाउसेस हैं. Okay, and because of these two houses it is called bicameral. Bicameral legislature. Bicameral means two houses. Unicameral one house. तो हमारी जो हाउस पार्लियामेंट है वो बाईकैमरल है, और इसमें हम क्या देखते हैं, जो दो हाउस है उसमें एक जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं लोकसभा. इट्स अ हिंदी टर्म, एंड इन इंग्लिश वी कैन यूज द टर्म हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, एंड और हाउस ऑफ द पीपल. And there is another house. The another house is Rajya Sabha. This is also called Council of States. But what we find is in our country the Hindi names are popular. Even in English books also you will find the name Lok Sabha and Rajya Sabha, but you must understand you must know the English terms also, House of the People and Council of States. Now we will see the कंडीशन ऑफ दिस, इन दोनों की क्या पोजीशन है उसको हम लोग देखेंगे. बट अगर यहीं पर हम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी देख लें कि स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारी होती है उसमें उसकी क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या होते हैं. एक्चुअली वी फाइंड कि हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो बाई कैमरल भी हो सकते हैं, यूनिकैमरल भी हो सकते हैं. ये ऑप्शनल है. इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट मेड कंपल्सरी कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है उनको बाई कैमरल ही होना है. हमारे यहाँ ये यूनिकैमरल भी हो सकता है. और अगर आज की कंडीशन में हम देखें तो हमारे यहाँ जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो 6 स्टेट्स में है. आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी. ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर कि बाई कैमरल है. और ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 हाउस होते हैं. उनके नाम आई एम राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ दीज 2 हाउसेस. ओके, द फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. And the second is the legislative
council. This is compulsory in all the state legislature. We find this legislative assembly, which is the representative body of the people, which is just like Lok Sabha. और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधान सभा. दिस इज कॉल्ड विधान सभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली, विच इज कंपल्सरी. हर स्टेट में ये होना ही होना है. एंड देन द सेकेंड हाउस इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विधान परिषद. Now this विधान परिषद is optional. ये कहीं it is not compulsory. At present we have 6 states जहाँ पर कि ये है. पहले जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था तो जम्मू कश्मीर में भी we have this legislative council, but now the जम्मू कश्मीर is no more a state, तो वो वहाँ पर वो अब नहीं रहा. ओके, तो ये हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका ये कंपोजिशन होता है. ओके, अब हम क्या देखेंगे कि क्यों हमारे यहाँ 2 हाउस है. अगर हम वी आर फोकसिंग ऑन द यूनियन लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट. सो व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस द सिस्टम ऑफ 2 हाउसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंट्री. आवर कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. वी ऑल नो that is the most unique feature of our society, that we have diversity of every kind, like diversity of religion, diversity of culture, diversity of language, diversity of reason, everything is present there. So what happens ki the country with such diversity, moreover we have a large population also. We are more than 130. हमारी जो population है वो बहुत ज़्यादा है. तो जो पॉपुलेशन के हिसाब से एंड डाइवर्सिटी के हिसाब से हमको क्या जरूरी है कि 2 हाउस होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि रिप्रेजेंटेशन मिले. हाउसेस आर देयर फॉर रिप्रेजेंटेशन. अगर सिंगल हाउस होगा तो वो रिप्रेजेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पाएगा. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि 2 हाउसेस होने चाहिए. सो बाय हैविंग 2 हाउसेस we ensure representation of all the people in the parliament, representation of all the reasons in the parliament. Moreover, there is another utility also by having this bicameral legislature. If we have bicameral legislature, then what we find कि every decision taken by one house goes to the other house, है ना. अगर single house होगा तो the single house will discuss the matter and the decision will be taken. And the prime function of legislature is law making. So what we find कि अगर 2 हाउस हैं तो एक हाउस में डिस्कशंस हो गए, सारा एवरीथिंग वाज डन, एंड वहाँ से अगर बिल मेजॉरिटी से पास हो जाती है देन इट गोज टू द सेकेंड हाउस. अब सेकेंड हाउस में जब इस पर डिस्कशन होता है तो हो सकता है इट मे हैपन कि फर्स्ट हाउस में कुछ चीज़ें छूट गई हों, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया हो. तो ये डबल चेक वाली बात हो गई, है ना, कि अगर एक जगह पे मिस्टेक हुआ है तो दैट मिस्टेक विल बिकम नोन. वो मिस्टेक छुपा नहीं रहेगा बल्कि उस मिस्टेक के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरी हाउस इज अगेन गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द होल बिल. तो ये हो जाता है कि डबल चेक हो रहा है हर मैटर पे. अगर कोई एक हाउस सपोज देयर इज एनी काइंड ऑफ हेस्ट, कोई हेस्टी डिसीजन ले ली, तो ये नहीं कि वो डिसीजन फाइनल हो गया, बिकॉज दैट डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द सेकेंड हाउस ऑल्सो. तो जब वो दूसरी हाउस में जाएगी तो वहां पर उसका फिर से वो डिस्कशन हो जाएगा. तो अगर वो हेस्ट में पहले हाउस ने किया हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, देयर मे बी गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि हेस्टी डिसीजन ले लिया जाए एक हाउस में. लेकिन दूसरी हाउस में जब वो जाएगा तो फिर वहाँ पर भी वो फिर से डिस्कस किया जाएगा. तो जो कुछ भी लूप होल्स रह गए, जो कुछ भी लैक्यूना रह गई, दैट विल कम टू द नोटिस ऑफ द मेंबर्स और फिर उसको करेक्ट किया जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 2 हाउस के होने का. तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव 2 हाउसेस.
दो हाउस क्यों होते हैं यूनियन लेवल पे, उसके यही दो रीजंस हैं. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस both the houses separately. First of all, we will discuss the Rajya Sabha or the Council of States. So, Rajya Sabha, we see that both the houses of the parliament is a representative body, है ना. हमने अभी we have discussed कि we have two houses in order to give representation, in order to make the parliament more representative body. तो दोनों ही जो हाउस हैं वो हमारी representative body है, बट उस representation का जो basis है that is different. Because what we find, you can understand from the name itself, Rajya Sabha. Rajya Sabha means राज्यों की सभा, the Council of States. तो ये जो राज्य सभा होती है, that represents the states of the country. It is not the representative body of the people. It is the representative body of the states. And moreover, we see that the members of the Rajya Sabha, they are indirectly elected. They are not directly elected by the people. Because this is not a representative body of the people. That is why its members are not getting elected by the people directly. But they are indirectly elected. And who elect the members of the Rajya Sabha? The members of the Rajya Sabha are elected by the members of the State Legislative Assembly. The members of the elected members of the State Legislative Assembly elect the members of the Rajya Sabha. ठीक है, people have elected the members of State Legislative Assembly. State level पे जो Legislative Assembly है उसके members को लोगों ने elect किया, और then ये जो State Legislative Assembly है उसके जो elected members हैं they elect the members of the Rajya Sabha. Okay, तो what we find कि ये जो हमारी राज्य सभा है it is the representative body of states. अब हम क्या देखते हैं कि there are two different principles of representation. ठीक है, दो प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए. इसके लिए कुछ कंट्रीज जो हैं, इन सम कंट्रीज हाउ दिस रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू द स्टेट बाय अडॉप्टिंग द equal representation to all the parts of the country. There will be no concern regarding the size of the state or the population of the state. Every state, जितने भी states होंगे किसी country में, उन सबको equal representation दे दिया गया. ठीक है, इसको हम कहते हैं symmetrical representation. तो symmetrical means equal. There is no concern, there is no consideration for the size and population of the state. Every state is given equal representation. This is called symmetrical. Okay. And there is another kind of representation also when we find that different parts of the country or the states of the country are given representation according to their population. Or if the state has more population, then the state will be given more representation, and if the state has lesser population, then that will be given lesser representation. So this is the system in which all the states do not send equal number of representatives, but it depends on the population of those states. So what we find in this symmetrical representation, symmetrical representation has been adopted in USA. In America, we find that every state has equal representation
in the this second house. It is called second chamber. ठीक है, जो ये स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है उसको हम सेकेंड चैम्बर कहते हैं, और यूएसए में इस सेकेंड चैम्बर का नाम है सेनेट. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि आगे इसके सारे डिस्कशंस होंगे, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है कि इसको सेकेंड चैम्बर हम क्यों कहते हैं. ओके, तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास.